तो भैया अबे ओ ग्रोसरी वालों, अबे मैच खेलते हैं तो ऐसे खेलते हैं, ऐसे ना के वैसे खेलते हैं। अबे अबे सस्ते ग्रोसरी वाले, कैप्टनसी करनी है ना तो ऐसी कर भाई, ऐसी ना के ऐसी। तो भैया इसको कहते हैं कैप्टनसी। भैया कैप्टनसी, कैप्टन वो नहीं होता है जो लीडर ना हो, वो ही अच्छा कैप्टन बन सकता है जो अच्छा लीडर हो। ठीक है, और अच्छा लीडर होने के लिए आपको अच्छा इंसान होना जरूरी है, जो कि आप में है नहीं है। तो भैया वाशिंगटन सुंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपको मैं दिखाता हूं, वो क्लिप आपको अभी मैं दिखाता हूं, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन भाई कैप्टन बोलते हैं ऐसे सूर्य कुमार यादव को। भैया सिराज का ओवर बचा हुआ था फाइनल, लेकिन खुद बॉलिंग करने आया। आज तक कभी T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग नहीं करी बंदे ने, लेकिन आज वो आता है फाइनल ओवर करने के लिए और टीम को मैच जितवा देता है, सुपर ओवर तक लेके जाके पहुंचाता है टीम को। सुपर ओवर जब होता है तो भैया 6 रन बचाता है। जिस बंदे ने आज तक T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग ही नहीं की है, वो बंदा 6 रन बचा लेता है और उसके बाद सुपर ओवर देता है वाशिंगटन सुंदर को, 2 रन पे खत्म कर दिया और उसके बाद एक बॉल लेके मैच जीत लिया। सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। पहले आप वाशिंगटन सुंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजा ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। Tough questions, controversial questions, but basically, unfortunately, only 11 can play. So, whenever team needs me and whenever I'm out on the park for my, representing my country, I need to give my 100%. I need to do the job so that my team is winning. So that's the only mindset that I'm in. Whenever I get my opportunity, I should make sure and I make sure I give my 100% and try and contribute to the team's success and win games for India. That's the only mindset I'm in. Washi, just want to know about the Rinku Singh over and after that Surya Kumar Yadav. What was running through Surya Kumar Yadav's mind? What was team strategy and planning? Rinku Singh coming in and he bowling and he getting the wickets, and after that Surya Kumar Yadav brilliant over. Honestly, it's amazing of him. Amazing of his leadership skills, to be honest, because 12 balls, 12 to win, I guess, and for him to bring Rinku, especially when Kushal Perera is batting and Rinku got him out, and Surya himself came in the last over and won the game, almost won the game for us. So it's amazing. We all know he has a big heart when he goes out there to bat, but also he has a big heart in terms of leadership as well. So it's all the credits to him and amazing of him. What do you think about the Ravi Bishnoi? How do you rate Ravi Bishnoi bowling? Who am I to rate Ravi Bishnoi's bowling? What do you think about in this match and the last match also? It took the wicket. I mean, he's a champion bowler. I think a few months back he was a world #1 bowler. So he's obviously champion bowler, and obviously world #1 means I think it should answer your question. So he's a very, very important bowler for us. In the chase, Sri Lanka were 110 at one point, and looked like they were going to get there easily. What was going on in the middle for the India team? What were you talking about? How were you able to mount such a massive comeback in the back end of the game? Correct. I mean, Surya kept telling us that 1 or 2 wickets, in between game would definitely change, and obviously, in these kind of games, low-scoring games, even run a ball would be, would put a lot of pressure on the batsmen because they need to get the job done, especially when the wicket has something for the bowler. So yes, he kept saying that 1 or 2 wickets, in the middle, especially in the middle overs, between 11 to 15, will definitely be in the game, and exactly that's what happened. Obviously, I hope my audience enjoyed the game because we won't see such games every now and then. But to be a part of this kind of a game and to be a part of this game, honestly, feels grateful. My question is, what will change from T20 format to ODI? What the strategy is going to be for ODI series? I mean, there could be a little bit of changes, not majorly, because we probably need to do whatever we do in T20 for a longer period of time, and obviously there'll be a little changes in terms of tactics and things like that. But yes, it's a great opportunity for me, and obviously for all of us, to be playing 3 games in Colombo, and all of us are really looking forward to it. Yeah, வணக்கம்.
19వ ఓవర్ రింకు సింగ్ వీసినారు. ಅವರ ಇದರ ಮುಂದಿನ పోటీలో పంపిస్తున్న భాగంగా 20వ ఓవర్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ వీసినారు. இலங்கையாண்டி இலகுவாக வெற்றி பெறுவதற்கு அந்த தருணத்தில் தான் 2 மார்க்கை போல் பண்ணுறாங்க. அது எப்படி அவங்களோட பிளான் அப்படி இருந்ததா, அப்படி ஒரு நிலைமை வந்து அப்படி போல் பண்ணுவாங்க பார்ட் டைம்ஸ் ஒரு பிளான் இருந்ததா, அல்லது திடீர்னு நீங்கள் சடன்லி எடுக்க முடியுமா? இல்லை, அவர் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு அந்த நேரத்தில் ஸ்பின்னர்ஸ் போட்டால் வில் ஹாவ் அ குட் சான்ஸ் டு வின் த கேம்ன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணார். அண்ட் he made obviously the very right decision because அந்த நேரத்தில் ரிங்கு வந்து மேட்சை திருப்பி விட்டார். எஸ்பெஷலி செட் பேட்ஸ்மேன் குஷால் பெரேராவை எடுத்தார். அண்ட் சூரியகுமாரும் அவரே வந்து போட்டு ஆல்மோஸ்ட் வின் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த சுச்சுவேஷன் படி அண்ட் விக்கெட் கண்டிஷன்ஸ் படி Washi, what was the idea behind the Super Over? What was the strategy? What was the think tank? Honestly, I had no idea that I was going to bowl, but especially after the batsman walked out to bat, Surya just turned behind and saw, and he said, "Washi, you're on." And then I was very happy, to be honest. When captain wants you to bowl in tough situations, especially in Super Over, I thought it was a great opportunity for me to step up and win the game for my country, and thank God, things. हाँ तो भाई लोग देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, भैया ये होती है टीम। अगर आपको सही मायनों में अगर कैप्टनसी करनी है ना, कैप्टनसी आपको अगर सही मायनों में देखनी हो तो भैया सूर्य कुमार यादव की देखो। मैं आज दिन तक महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, एक रोहित शर्मा की कैप्टनसी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, 2 रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, 3 सरफराज अहमद पाकिस्तान उनकी कैप्टनसी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, 4 जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कैप्टन्स। ये कैप्टन नहीं होते, ये लीडर हैं। जिनका मैंने आपको नाम बताया ये लीडर थे, ये कैप्टन नहीं थे। वही चीज सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, जो मैंने आपको जो कल मैंने डाली थी, आपने देखी, बहुत प्यार दिया आपने उस वीडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भैया ये होते हैं। सूर्य कुमार यादव क्या कहते हैं? सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, वो बंदा लीडर है। लीडर कौन सा होता है? लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है जो अपनी टीम को, जो अपने काफिले को, काफिला मतलब क्या होगा? जो आपके साथ चलते हैं, जो आपकी टीम होती है, जो उसको लीड करता है। कहां से? फ्रंट से। लीड करने का मतलब होता है फ्रंट। क्या मायने होते हैं? कि अगर कोई भी मुश्किल आती है ना, आप उस मुश्किल में सबसे पहले खुद को लेके आए हो आगे। मतलब अगर आप किसी भी मुसीबत के आगे खुद खड़े हो जाते हो, अपनी टीम को अपने पीछे रखते हो, उसको बोलते हैं लीडर। ना कि जब मुसीबत आए आप दूसरों को आगे कर दो, पीछे छुप जाओ खुद, है वो लीडर नहीं होता है। और जब तक आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, आप कैप्टन नहीं बन सकते, आप कैप्टनसी कर ही नहीं सकते हो। कैप्टनसी नहीं होती है ऐसे। सूर्य कुमार यादव, मैं हैरान हो गया, मैं जब मैच देख रहा हूं, यहां तक कि कमेंटेटर क्या बोल रहे हैं। कमेंटेटर बोल रहे थे कि आपके पास सिराज है, वो कटर डाल सकता है, वो प्रॉपर बॉलर है, और सूर्य कुमार यादव आप बॉलर नहीं हो, आपने आज तक कभी T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग ही नहीं करी है, ये फर्स्ट टाइम करने लगे, आपने कभी बॉलिंग ही नहीं की, तो आपको रन पड़ सकते हैं। और ये सच्ची बात है भाई, स्पिनर को लास्ट पे रन्स पड़ते ही पड़ते हैं, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो यूजी चहल हो, चाहे वो कोई भी हो, रन पड़ जाते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव देखो, बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस का लेवल देखो। बंदे ने 6 रन बचाए भाई, मजाक नहीं होता है 6 रन बचाना। लास्ट पे 6 रन बचाता है बंदा, 6 रन बचाए, सुपर ओवर तक लेके गया टीम को। मैं खुद सोच रहा हूं कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है बंदा, ये खुद बॉलिंग पकड़ ली है, कहीं लालची तो नहीं है। लेकिन लालच भैया तो नहीं ना, लालच किस टाइम पे आपको क्या पता चलता है कि जब कोई बंदा बॉलिंग या बैटिंग खुद पकड़ ले एज ए कैप्टन, आपको कब रियलाइज होगा कि ये लालची है? कब? जब टीम बहुत अच्छी, अब फॉर एग्जांपल कोई मामूली से बैटर खेल रहे हूं, आप बीच में लग जाओ बॉलिंग करने के, अभी मैं अपने ओवर निकाल लेता हूं, एक आधी विकेट मिल गई तो बहुत अच्छा है, उसको लालच कहते हैं। लास्ट ओवर पे आके 6 रन बचाने, जब 6 रन बचाने होते हैं, 1 ओवर आपके पास बचता है, जब आपने कभी बॉलिंग ही नहीं की, इसको लालची नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नाडर और दिलेर आदमी। मां कसम,
इतना सीना चाहिए उस चीज के लिए, और इतना बड़ा गुर्दा चाहिए ये काम करने के लिए जो सूर्य कुमार यादव ने करके दिखाया है। मैं तो भैया फैन हो गया। मैंने अभी आपको 4 नाम गिन के बताए थे ना, अभी तक इसके बाद का मेरे को पता नहीं है, बाद में वो क्या करेंगे, कैसे कैसे अपनी टीम को लेके आगे चलेंगे, वो मैं बाद में देखूंगा, वो बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन जो अभी तक उन्होंने अपनी कैप्टनसी दिखाई है, जो मैंने आपको 4 नाम गिन के बताए, मैं उन चारों से ज्यादा ऊपर रेट करूंगा इस बंदे को, चारों से ज्यादा रेट करूंगा। मतलब क्या यार, कैप्टनसी करनी हो ना तो ऐसी करो, ना कि खुद दूसरों के पीछे आड़े टेढ़े तिरछे छुप जाओ, उसको कैप्टनसी नहीं कहते। जो दूसरों के पीछे खुद छुप जाए, दूसरों को आगे कर दे, बाद में कह मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कैप्टन था, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट रिसोर्स यूज किया। जब वो रिसोर्स चला ही नहीं, जब वो रिसोर्स कामयाब हुआ ही नहीं, देन व्हाट शुड आई डू। ऐसा नहीं किया उस बंदे ने। उसके पास सिराज का ओवर है भाई, सिराज एक टॉप लाइन बॉलर है आपका, जो जसप्रीत बुमराह के साथ भाई T20 वर्ल्ड कप जिताया आपने उसको। T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के साथ भैया वो बॉलिंग करता रहा है, वो आपका फ्रंट लाइन बॉलर है। सिराज, शमी, बुमराह, ये आपके तीनों फ्रंट लाइन बॉलर है, और इन फ्रंट लाइन बॉलर्स होने के बाद वो बंदा बॉलिंग कर रहा है जिसने कभी आज तक लाइफ में इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग ही नहीं करी है T20 में। हाँ, आप लोग कह रहे होंगे कि बॉलिंग की है, भैया वो डोमेस्टिक लेवल पे की है, आईपीएल में की है, लेकिन T20 आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। डोमेस्टिक में बॉलिंग करना और आईपीएल में बॉलिंग करना और इंटरनेशनल में बॉलिंग करना जमीन आसमान का फर्क होता है। आप ये मत देखो कि सामने बैटर कौन खेल रहा है, आप ये मत देखो सामने टीम कौन सी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का एक प्रेशर जो होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो भैया हैट्स ऑफ टू यू सूर्य कुमार यादव, क्या कैप्टन मिला है इंडिया को। देखो भाई, जब आपकी नीयत साफ होती है ना, आपके काम भी अच्छे दिखते हैं और आपसे होते हैं वो काम। जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तो अल्लाह पाक भी आपको मदद करता है। जब आप मेहनती होते हैं, जब आपकी नीयत साफ होती है, तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब आपकी नीयत में खोट होता है ना, समझ रहे हो ना मैं किधर इशारा कर रहा हूं। अब बार बार फालतू की बकचोदी करने से बेटर है ना कि कोडवर्ड में बात की जाए। आप लोग समझदार हो, समझ जाते हो यार भाई, आप लोग बहुत समझदार हो। तो अगर फालतू की मतलब अगर जलालत करनी हो, नीयत खोटी रखनी हो, अपने रन्स करने हो, अपना नाम बनाना हो, बस क्या अंधू में काना राजा बन के छुपना हो, तो वो आप उनसे सीख लीजिए। और अगर दिलेरी का बहादुरी किया और कॉन्फिडेंस लेवल का या एक लीडर कैसा होता है वो देखना है, तो सूर्य कुमार यादव को देखो अभी के प्रेजेंट टाइम में। रोहित शर्मा हमारा बहुत बड़ा कैप्टन है, नो डाउट अबाउट इट, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन जो इस बंदे ने कल के मैच में करके दिखाया भैया, आप समझ नहीं सकते हो मेरी फीलिंग्स क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया मैच जीत गया दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी ना, ऐसा नहीं है। इंडिया तो मैच जीता, हम रोज हैप्पी होते हैं, वो एक अलग बात है। वो हमारे लिए एक, अब मतलब भारतीय टीम का लेवल इतना बड़ा हो गया कि इंडिया का मैच जीतना, वो अब हम यूज टू हो चुके हैं उसके। सिंपल वर्ड में समझाऊं, हम उसके यूज टू हो चुके हैं, हमें वो देखने की आदत पड़ चुकी है कि इंडिया मैच जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन मैं ज्यादा अगर किसी चीज से मुतासिर हुआ हूं ना, मैं ज्यादा इस चीज से मुतासिर हुआ जो इस बंदे ने काम करके दिखाया। ऐसे होते हैं कैप्टन, ऐसे होते हैं लीडर। लास्ट ओवर अपने हाथ में पकड़ लिया भैया, और बंदा चल कैसे रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठहर जा, बाकियों को कह रहा है रहन दो यार, अपन है ना, अपन है, तुम रहने दो। और बंदे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने क्या बोला, मेरी गेम वैसे ही रहेगी। रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया आपकी गेम कैसी, अब इसके बाद अब कैसा खेलोगे। उसने कहा भैया मेरी गेम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मैं तो वैसा खेलूंगा, और इनफैक्ट अब मैं उससे बढ़ के खेलूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे ऊपर है सारी जिम्मेदारी, अब टीम को मैंने चलाना है। अब मैं टीम के अपने प्लेयर्स को, लड़कों को खुल के बता सकता हूं कि हमें किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। और अब मैं क्या करूंगा, खुद भी प्रेशर नहीं लूंगा, दूसरे लेते ले ले। अब तो मैं और खुल के खेलूंगा, क्योंकि मेरी सिर्फ जिम्मेदारी मुझे अपने तरीके से खेलना है। कहने का यह मतलब था कि पहले मैं किसी के अंदर कंट्रोल्ड था, मुझे प्लान दिया जाता था, आपने ऐसा खेलना है, ऐसा खेलना है, इतना तेज। हालांकि वो खेलते थे, उनको प्लान भी वैसा मिलता था।
अब उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने साथ साथ ना बाकी वालों को भी ऐसा करूंगा और ये दबा दब करूंगा मैं।